Hello, dear student. In continuation with chapter 10, How Animals Survive, today we are going to learn more about this chapter. Today, so let's start. How animals live. Animals are found everywhere on land, on trees, flying in the air, and in water. Some of animals found on both on land and water. Based on where animals spread most of their time, they can be grouped into terrestrial, arboreal, aquatic, and amphibious animals. So let's start with first terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. These animals have features suitable for life on land. They have legs which help them to walk on land and most of them have lungs as their breathing organ. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Yak live on mountains and polar bear live in polar region. A camel is found in the desert. Animals such as penguin, seal, walrus have thick layer of fat called blubber under the skin to keep their body warm in the cold region. Then animals such as bear, frogs, snakes become inactive in winter month when the food is scarce. This inactivity during the winter months or winter sleep is called hibernation. Animals living in desert have very little hair on their body since there is a lack of water in desert. Slowing down activity or settling down to a long sleep by some animal during the hot summer month is called estivation. Thus, animals have adapted to live in different climatic conditions. Hibernation helps to avoid damage from low temperature in winter and estivation helps them avoid damage from high temperature in the summer. Now next is aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Most aquatic animals breathe through gills except whales and dolphins that breathe through the lungs. मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स गिल से ब्रीथ करते हैं बट वेल एंड डॉल्फिन जो है वो लंग से ब्रीदिंग करते हैं. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और पैडल्स दैट हेल्प देम टू स्विम. अपार्ट फ्रॉम fish and octopus, turtle, crab are also the aquatic animals. Now next one is the amphibians. Animals that can live both on land and in water are called amphibians. जो एनिमल लैंड पे भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं उसको एम्फीबियस बोलते हैं. द लैक ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल आर स्ट्रॉन्गर दैन देयर फ्रंट लेग्स. फ्रॉग एंड टोड जो है वो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है. जब वो लैंड के ऊपर होता है तब वो अपने स्ट्रॉन्ग लेग के थ्रू जंप करता है और फ्रंट में 2 लेग होते हैं और पीछे में 2 लेग्स होते हैं और वेब लेग्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं फ्रंट लेग से और वेब फीट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. फ्रॉग एंड टोड आर एम्फीबियंस. Next most important topic is arboreal animals. Land animals that live mostly on trees are called arboreal animals. They have sharp claws to climb up and down the branches and usually have strong muscular limbs. आर्बोरियल एनिमल्स को पेड़ पे रहना बहुत पसंद है. दे हैव शार्प क्लॉज. उनके जो पंजे होते हैं वो शार्प होते हैं. वो ब्रांच को क्लाइंब अप करने के लिए और डाउन जाने में हेल्प करते हैं और उनके जो लिम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर होते हैं. वो जंप करने में भी हेल्प करता है. टेल के हेल्प से वो ब्रांचेस को होल्ड करता है. द एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स आर मंकी एंड कोयला. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एरियल एनिमल्स. नाउ these animals can spread most of the time in flying. Animals that can fly and spend a lot of their time in the air are called aerial animal. Such animals have hollow bones that make their body light. Hollow means
एकदम खोखली, उसकी वजह से उनकी बॉडी कैसी होती है, लाइट वेट होती है। दे हैव वन सेट ऑफ लिम्स मॉडिफाई एज अ विंग टू हेल्प देम फ्लाई। उनके जो सामने के लेग्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। द बॉडी शेप ऑफ एरियल एनिमल इज सच दैट दे आर एबल टू कट थ्रू द एयर इजीली। उनका जो बॉडी शेप होता है उनकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। बैट ऑल्सो हैव द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। इन द कोल्ड विंटर सीजन when food is become scarce, scarce means come, many birds fly towards the warmer country in search of food and warmth. जब ठंडा जो मौसम होता है उसमें विंटर सीजन में कोल्ड कंट्रीज में जो बर्ड्स है वो वार्मर कंट्रीज में मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ। Now next topic is what animal eat. Animal eat different types of food. Based on the type of food they eat, they can be divided into 5 main groups. These are herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasite. एनिमल जो फूड खाते हैं उसके डिपेंड उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द herbivores. Animals that eat plants are called herbivorous. So student, what do you mean by herbivores? जो animals plants खाते हैं वो animals को herbivorous बोलते हैं। You can look at this picture. In picture given the animal herbivorous. That animals eat only plants. Animals have sharp teeth for biting and cutting and very strong teeth for grinding. ये जो हर्बिवरस एनिमल्स होते हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द ग्रास एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मीन्स पीसना। This is because of plant food need to chew a lot as it is very rich in substance called cellulose which is difficult to break down. उनके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो जो ग्रास खाते हैं वो ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है और इस सेलुलोज चबाने में बहुत हार्ड होता है, इसलिए उनके टीथ जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल इज द कार्निवोरस. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivorous. The student, carnivorous means which animal? That animal eat only the flesh of other animal. Most carnivorous animal have very sharp teeth for tearing out the flesh of its prey. मीन्स वो जो फ्लेश खाते हैं वो फ्लेश टीयर करने के लिए, तोड़ने के लिए उनके जो टीथ होते हैं वो वेरी शार्प होते हैं। Example of these carnivores are lion, tiger, snake and lizards. The next group of animals is the omnivorous. Animals that eat plants as well as flesh of other animals are called omnivorous. So student, what is the omnivorous? Omnivorous, the plant animals that eat plants as well as flesh. These are raccoon and bear are the example of omnivorous. Human being also omnivorous. Then next is the scavenger. सब flesh eating animals feed on flesh of dead animals. ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड एनिमल के बॉडी पे, एनिमल पे डिपेंड होते हैं। वो ये स्कैवेंजर हमारे एनवायरनमेंट को भी नीट एंड क्लीन करते हैं क्योंकि वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। दीज आर क्रो, वल्चर एंड हिना. Then parasite. Some animals derive their nutrition from the other living organisms. Such animals are called parasite. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको फूड के लिए दूसरे लिविंग एनिमल पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये जो पैरासाइट है वो एनिमल्स के बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, बॉडी के ऊपर रहते हैं। They may live on or inside the body of their host. Host means क्या होता है? Host means the animal on which another animals lives and feed. एक जो animals होता है उस पे जो दूसरा animals डिपेंड होता है वो उनको
क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। होस्ट मीन जो दूसरा एनिमल होता है जिन पे वो रह रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जिससे उनको फूड मिल रहा है उसको होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स आर tapeworm, roundworm, fleas, lice, hookworm. The fleas and lice live on the host body. जो फ्लीज होते हैं वो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, हमारे बालों में रहते हैं। और ये जो टैपवर्म, राउंडवर्म एंड हुकवर्म है वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. Many animals have adapted themselves well to the environment to protect themselves from their enemies. Adaptation means कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और उनमें क्या क्वालिटीज़ होते हैं जिससे वो अपने आप को अपने एनिमी से बचाते हैं। Animals such as elephant, hippopotamus have thick skin to protect themselves from heat in हॉट क्लाइमेट। ये जो एनिमल्स होते हैं एलिफेंट एंड हिप्पोपोटामस, उनकी स्किन कैसी होती है, थिक स्किन होती है, क्योंकि वो जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं वो हीट से बचने के लिए उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। देन नेक्स्ट गैज़ल. Some animals such as deer and gazelle have very strong legs and they are able to run very fast. These animals can easily run away from the predators. गैज़ल भी डियर की तरह होते हैं और उनसे बचने के लिए उनमें स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे वो फास्टली रन कर पाते हैं और अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेते हैं। प्रेडेटर कौन होता है, जैसे लॉयन जो होता है डियर और गैज़ल को खा लेता है, तो गैज़ल और डियर अपने आप को किससे बचाते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग लेग से बचते हैं। और प्रेडेटर्स का मीनिंग क्या होता है, प्रेडेटर्स एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स अदर एनिमल्स। लॉयन जो होता है गैज़ल और डियर को खा लेता है और वो उससे हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेडेटर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सम एनिमल्स सच एज कैमेलियन, ज़ेब्रा, आर्टिक फॉक्स, पोलर बेयर एंड द फ्रॉग can trick their enemies because their body color blends easily with their surrounding, thus confusing their enemies. This is known as the camouflaging. A chameleon can also change its body color according to surrounding. Grasshopper and stick insect also show perfect camouflage. कैमेलियन जो होता है वो जब ट्री के ऊपर होता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है और जब वो लैंड के ऊपर होता है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। ज़ेब्रा में क्या होता है, वाइट एंड ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। पोलर बेयर जो होता है उसका कलर वाइट होता है और स्नो का कलर भी वाइट होता है। तो उन सभी एनिमल्स में क्या होता है, ट्रिक्स होते हैं जिसके कारण वो अपने सराउंडिंग से मैच कर पाते हैं और एनिमीज उनको देख नहीं पाते हैं। दिस इज नोन एज द कैमोफ्लेजिंग। ग्रास होपर ग्रीन कलर का होता है और वो मैक्सिमम ग्रास के ऊपर होता है और ग्रास का कलर भी ग्रीन होता है, इसलिए वो एनिमीज को दिखता नहीं है। स्टिक इंसेक्ट का कलर कैसे होता है, ब्राउन होता है। वो जो ब्रांच पे होता है वो ब्रांच भी ब्राउन होती है, इसलिए वो एनिमीज को नहीं देख पाते, उसकी वजह से वो एनिमीज से बच जाते, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेजिंग। वन इज एनिमल्स इन डेंजर. Despite a lot of adaptation, lives of several animals are in danger because of the destruction activities of humans. ह्यूमंस के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है, डे बाय डे कुछ एनिमल जो है वो डेंजर में है और उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। जैसे वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर आवर नीड्स. By doing so, we are taking away home and food of many animals. हम जंगल को काट रहे हैं अपने नीड के लिए और उसकी वजह से उनका जो होम है वो डिसअपियर हो रहा है।
By doing so, we are taking away home and food of many animals. Thus, many animals are in danger of dying out. Some animals, such as dodo and passenger pigeon, have already disappeared from the earth. और उससे हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स के होम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनको फूड भी नहीं मिल रहा है। डोडो एंड पैसेंजर पिजन पहले से ही अर्थ से गायब हो चुके हैं और सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट यानी जो गायब हो चुके हैं। ऐसे एनिमल जो अब हमारे अर्थ पे नहीं रहे हैं, जैसे डोडो एंड पैसेंजर पिजन। डायनासोर्स भी अभी अर्थ पे नहीं है। तो these are extinct animals. Animals such as giant panda and tiger are in danger of becoming extinct. Such animals are called endangered animals. तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्ट एनिमल? ऐसे एनिमल जो हमारे अर्थ पे नहीं रहे, जैसे डोडो एंड पैसेंजर पिजन। डायनासोर भी अभी अर्थ पे नहीं है। तो दीज आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स लाइक जाइंट पांडा एंड टाइगर की भी स्ट्रेन डे बाय डे कम होती जा रही है। उसको बोलते हैं एंडेंजर एनिमल्स। एंडेंजर मीन्स जिसका नंबर डे बाय डे कम होते जा रहा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर एनिमल? द एनिमल becoming extinct in danger. And what do you mean by extinct animal? The animals that have already disappeared on the earth. So student, have here the end of the chapter and hope you understand very well. Thank you.